Hello everyone, myself Vani Singh and today I will be teaching you the biology. In biology, we will be studying the chapter Anatomy of Living Plants. So please let's have a look. Firstly, we should know what is the meaning of the anatomy. Anatomy means the study of the internal structure. Anatomy means study of the internal structure is known as the anatomy. After that, what is the importance of the anatomy? एनाटॉमी हमें ये जानने के लिए हेल्प करती है कि हम एक प्लांट का नॉट ओनली ऑफ प्लांट ऑफ एनी ऑर्गन वी कैन से एनी एनिमल हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने में हेल्प करती है. नाउ जो देयर इज अ बेसिक थिंग. फर्स्टली वी शुड नो जो हमारे सेल्स होते हैं वो किसके बनते हैं? टिश्यूज के. Cells is made up of tissues and this tissue is of two types and the two types are the meristematic and permanent cell. Meristematic tissue also you can say meristematic tissue and permanent tissue. Cell is made up of tissues and tissue is made up of tissue system. जो हमारा टिश्यू है वो किसका बना होता है? टिश्यू सिस्टम. जो हमारा टिश्यू सिस्टम होता है it is made up of three types. And that three types are, I'm just writing here, firstly ground tissue, second is your vascular tissue, third one is your epidermal tissue. जो टिश्यू सिस्टम होता है हमारा वो किसका बना होता है? ऑर्गन का. इट इज मेड अप ऑफ, और वी कैन से आगे जो टिश्यू सिस्टम है वो क्या बनाता है? ऑर्गन. सो इट इज मेकिंग द ऑर्गन. अब जो हमारे ऑर्गन है उसे वी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. लाइक राइटिंग एग्जांपल, रूट बनती है हमारी, स्टेम, leaf and flower. From the organ, the next formation is your organ system. अब जो हमारा organ system है it is made up of, और वी कैन से जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है ये हमारा क्या बनाता है? आई एम जस्ट राइटिंग हियर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा प्लांट बनता है. ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा प्लांट बनता है. I hope I am clear in this chart to you. It's a basic idea. Firstly, we should know what is the meaning of the anatomy. Anatomy simply means the study of the internal structure is called as the anatomy. After that, जो हमारे cells है किससे बनते हैं? Tissues. Then tissues are of two types. That is your meristematic and the permanent tissue. We will be discussing it briefly in after some time. जो हमारे टिश्यू सिस्टम है it is of three types. That is your ground, vascular, epidermal.
टिश्यू सिस्टम के बाद आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। इन दैट वी विल बी डीलिंग विद द रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से आपका एक पूरा प्लांट बनता है। So now we will be dealing with the primary meristem, not primary, meristem tissues. In tissues we have divided into the two parts, that is the meristem and the permanent. So please let's have a look. जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो किसके बनते हैं बेटा? इट इज मेड अप ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो हमारा सबसे पहले बनता है. जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग. जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है इट इज फॉर्म आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम. ये हमारा बाद में बनता है. सो फर्स्टली प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है. प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी. सो इट इज फॉर्म्ड लेटर ऑन. इसकी बाद में फॉर्मेशन होते हैं. लेटर फॉर्म आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम. After now we will be dealing with the permanent tissue. So please let's have a look. Permanent tissue. Now these permanent tissues are of two types. This permanent tissue has been divided into the two types that are simple and complex. Firstly, let's have a look on the simple. This simple has been divided into the three parts, that is your parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Then this complex has been further divided into the two parts, that is your xylem and phloem. I just want to tell you one more thing. जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज योर कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम. जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज योर कॉर्क कैम्बियम एंड द वस्कुलर कैम्बियम. नाउ वी विल बी डीलिंग ब्रीफली विद द parenchyma, which is your permanent tissue. Just want to give a little bit short. Parenchyma and the collenchyma are your living tissue and the sclerenchyma is your dead tissue. So now please let's have a look on the parenchyma. Firstly, if it, as I've already told you, जो हमारा parenchyma होता है it is a living tissue. Collenchyma is also your living tissue. जो आपका dead tissue होता है that is only your sclerenchyma.
पैरेन्काइमा की बात करें, इसकी जो शेप होती है दैट इज योर स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, राउंड एंड पॉलीगोनल। ये इसकी सारी क्या है, शेप्स। आफ्टर दैट जो इनकी वी ऑल्सो से दे आर आइसोटेमेट्रिक। नाउ व्हाट डज आइसोटेमेट्रिक मीन्स? दे आर इक्वली distributed. They are equally distributed. So we use the term isometric. इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज अ थिन सेल वॉल। बेटा जो भी सेल वॉल अगर लिविंग टिश्यू होगा वो क्या होगा, उसकी जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, थिन। एंड उस इट इज अ थिन सेल वॉल। एंड जो उसकी सेल वॉल होती है यू कैन सिंपली सी हियर इट इज अ सिंगल लेयर। सो जो इसकी सेल वॉल होती है इट वी ऑल्सो से एज अ प्राइमरी सेल वॉल। और जो इसकी ये सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ दी सेलुलोज। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स, इसका सिंपली फंक्शन यही होता है, इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। हियर जैसे हमें पता है जो वुमेन्स होती है, स्त्रियां होती है घर की, वो क्या करती है, सब कुछ स्टोर करके रखती है। तो पैरेन्काइमा का भी क्या फंक्शन है, वो सब कुछ स्टोर करके रखता है अपना अंदर। लाइकवाइज हियर जो पैरेन्काइमा है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, पैरेन्काइमा में आपके जितने भी वी कैन से मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं वो इसके अंडर ही आते हैं, आपके अंडर योर पैरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस का काम बेटा आपके वी कैन से कोलेनकाइमा भी करती है, बट मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस का काम पैरेन्काइमा करती है। सो नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द कोलेनकाइमा सेल्स। So now let's have a look on the कोलेनकाइमा। As I've already told you, जो आपका कोलेनकाइमा होता है वो क्या होता है, आपका लिविंग टिश्यू। जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, दिस वन विच यू कैन सी ब्लैक कलर, जो इनके कॉर्नर्स होते हैं उनके अंदर कुछ थिकनिंग होती है। वो थिकनिंग किसकी होती है, दैट इज योर मीन्स वी कैन से देयर इज एन डिपोजिशन ऑफ, उसमें कॉर्नर्स में क्या होता है आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड द पैक्टिन। If we talk about the shapes of the कोलेनकाइमा, तो इनकी जो shapes होते हैं that is your oval, spherical, polygonal. Now as I've already told you, जो पैरेन्काइमा है उसका काम भी फोटोसिंथेसिस होता है एंड कोलेनकाइमा का भी फंक्शन क्या होता है, they are also doing the photosynthesis but only when they do have the chloroplast and they are providing the mechanical growth to the growing parts of the plant. बेसिकली बेटा जो मैकेनिकल ग्रोथ होती है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वी कैन से सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल किसके अंदर होगी, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। सो वी कैन से कि जो आपका कोलेनकाइमा में है जो मैकेनिकल टिश्यू है वो क्या हेल्प कर रहा है, एक प्लांट को वो खड़े होने में हेल्प कर रहा है। प्लांट है, धरती से जुड़ा है, तो वो खड़ा भी तो हो रहा है, तो इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग द, खड़े होने के लिए जमीन में कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज योर कोलेनकाइमा। सो दिस इज योर शेप ऑफ द कोलेनकाइमा। जो इनके साइड्स में है, कॉर्नर्स में, उसमें क्या होती है, थिकनिंग होती है। एंड वन मोर थिंग, इन सेंटर देयर इज एन ऑल्सो द वैक्यूल, बीच में एक वैक्यूल भी होता है, दिस इज योर वैक्यूल। And between the vacuole and this one layer there is a space, this space is your cytoplasm, this space is your cytoplasm. After this we will be doing the sclerenchyma.